Hello, candidates. Welcome to the discussion of a reading passage. As the title showed, today we will discuss about a C17, the latest reading content for the IELTS aspirants. If you want to get 7 plus band in IELTS, this video is going to be very interesting, very knowledgeable for you because today we are going to be discuss C17, the latest reading content. I will discuss some of the strategies that how to do fill in the blanks and true false in the Cambridge IELTS. How the strategies will help you to get the perfect 9 band. So ready candidates, let's move to the text. So today I'm going to be discuss a reading test 1. The passage name, the development of the London Underground Railway. Candidates, as I always suggest, that try to always work in a limited time frame. Here also for the question number 1 to 13, I suggest you to focus on 18 minutes target. Try to finish 13 questions in 18 minutes. In these 18 minutes, in the next 18 minutes, what you have to do? You have to do the scanning and skimming. You have to prepare your keywords. Then you have to do scanning, correct? And you have to do the paraphrasing also because this is a test of your vocabulary as well. Then you have to assess the grammar part here. In the same way, the next most important thing is the connotation. So don't worry, you are going to be use all these strategies one by one. I will try to discuss with you in this video. In this tutorial, we will discuss the strategies that how to crack the question number 1 to 13 in a best possible way. So candidates, the topic is the development of the London Underground Railway. The first step is to read the title and the subtitle. Look at the picture. Here we are having only the title, the development of the London Underground Railway. So I will focus only on the title. Then I will go to the questions. If you check candidates here, I have a question 1 to 6 and all the 1 to 6 questions what they are asking because it's very, very important to read the instructions carefully. Here it's mentioned choose one word only candidates. It's very important in the IELTS listening, in the IELTS reading. Always pay attention to the instructions given. Word limit is important to consider. See, here it is mentioned one word only. If you will write one number, you will be penalized. If you will write one word, one number, you will be penalized. So make sure always read the instructions carefully in the listening and the reading questions, especially in the IELTS test. Now, if you check the title here for the question number 1 to 6, they are talking about a London Underground Railway, same as we are expected in the passage. Then I have a question number 1 with the first topic, the problem. Then I have a second subtopic that is the proposed solution. The third one is the construction. Here I have a fill in the blanks 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Now, candidates, while doing the fill in the blanks, what is the important strategy to keep in mind? The first and the foremost, always in a fill in the blanks, please pay attention to the GRA. GRA means your grammatical range. GRA means range and accuracy. Here, you have to be focused on the basic attributes of the sentence. A sentence always comprises of 3 elements, subject, verb, object. Candidates, एक sentence में 3 elements बहुत important है, subject, verb, object. आपको जब भी fill in the blanks करने हैं, हमेशा इसमें divide करना है sentence को, चेक करना है कि सेंटेंस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है. आप पैसेज में जाएंगे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को सर्च करेंगे कि क्या मुझे सब्जेक्ट चाहिए, क्या मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए. सो यू कैन गो टू द सेम लाइन एंड ट्राई टू फाइंड आउट दिस. मैनी ऑफ द कैंडिडेट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स को यही प्रॉब्लम आता है कि मैम हमें लोकेशन मिल जाता है बट आंसर नहीं मिलता. हमें लाइन मालूम है कि इस लाइन में आंसर है बट आई डोंट नो दैट व्हाट इज द करेक्ट वर्ड टू राइट. So candidate, this is the best suggestion to you, the best tip of the day. Always pay attention to the grammar. Grammar elements, subject, verb, object. Object means adjective.
Correct? Object means they are looking for any type of particular adverb, will help you to find out the correct answer. The next most important thing in the fill in the blanks that will help you is the subject verb agreement. Singular, plural, correct? Where there is a requirement of singular word, where there is a requirement of a plural, will help you a lot to find the correct answers. Correct? So, by having this particular example, जो भी हम टिप्स आज वीडियो में इस ट्यूटोरियल में डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी टिप्स आपको लाइव एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर शो किए जाएंगे, ताकि आप जब भी प्रैक्टिस करें कैम्ब्रिज मटेरियल की, आपका आइल्स का स्कोर इंप्रूव हो। आइल्स का स्कोर इंप्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रीडिंग का, लिसनिंग का, राइटिंग का कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस इज द की कैंडिडेट्स। Never forget that only the 3 P's, practice, 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 will give you the correct or the perfect or the desired score. So keep practicing, but हमेशा याद रखें, fill in the blanks का मतलब है grammar. Fill in the blanks में बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मालूम हो कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है। Fill in the blanks का मतलब है कि आपके पास कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की, कि सब्जेक्ट क्या है और उसके साथ वर्ब क्या लगेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आंसर में वर्ब क्या होगा, करेक्ट। और अगर मेरे पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट ना। यहीं पे एग्जांपल्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। देखो यहां लिखा है द स्ट्रीट्स, सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल। वीडियो देख रहे हैं तो पॉज करके कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं कि स्ट्रीट सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है। उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आप चेक कर सकते हैं, प्लूरल के लिए लगा है। क्लियर? सो इस टाइप की चीजें विल हेल्प यू टू गेट द परफेक्ट स्कोर। आंसर्स देने जरूरी हैं। यस कैंडिडेट्स, नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब मुझे समझ आ गया कि हमें ग्रामर चेक करना है, फिल इन द ब्लैंक्स सर्च करना है। ऊपर लिखा हुआ था इंस्ट्रक्शंस में नो मोर देन वन वर्ड, मींस आई हैव टू फाइंड द वन वर्ड आंसर ओनली। नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द IELTS टेस्ट इज अ paraphrasing. Now I have to check the same type of sentence structure but with the different words, keeping the thing into mind that the sentence meaning should remain same. सेंटेंस का मीनिंग डिफरेंट नहीं होना चाहिए, सेंटेंस का मीनिंग सेम होना चाहिए, वर्ड्स वो डिफरेंट यूज कर सकता है। ये रीडिंग में हमेशा आपको मिलेगा। आप कोई भी क्वेश्चन टाइप लें, रीडिंग का बेस्ट स्ट्रैटेजी है दैट इंप्रूव मोर एंड मोर इन पैराफ्रेजिंग। आपकी पैराफ्रेजिंग अच्छी है, इसका मतलब आपकी हैंड राइटिंग, जो आपका राइटिंग मॉड्यूल है, राइटिंग टास्क 1, टास्क 2 इज गोइंग टू इंप्रूव। इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें पैराफ्रेजिंग सीखना है। मीनिंग शुड रिमेन सेम, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूं, मीनिंग शुड रिमेन सेम। मीनिंग सेम रहना चाहिए। मीनिंग चेंज हो जाएगा तो आपका आंसर ट्रू का आप फॉल्स भी लिख सकते हैं, तो बी केयरफुल। आपको पैराफ्रेजिंग ही सर्च कर रहा है। हमेशा रीडिंग में एक चीज मान के चलें कि आपको डायरेक्ट कुछ नहीं मिलेगा, सीधा नहीं मिलेगा, चेंजेस होंगे। बट वो चेंजेस जब भी आप रीडिंग कर रहे हैं, आई ऑलवेज सजेस्ट टू हैव अ पेन एंड अ कॉपी विद यू, प्रिपेयर द नोट्स, बिकॉज रीडिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू इंप्रूव योर LR. LR मीन्स लेक्सिकल रिसोर्स. If you want to improve your vocabulary, please always have a pen or a copy with you while doing a practice of reading. For example, here it is mentioned the dash of London increased rapidly, a verb-adverb relationship, very important for your task 1. Between the time phrase is given 1800 and 1850, the time period. My object is given. Now what they are saying, the dash of London increased rapidly. I am going to the first passage. Why I'm going to the first passage? Because you know that in IELTS reading, 90% answers are in a serial order. So please come to the first line. And if I'm coming to this point, because my time phrase is my keyword, I am taking this line because it is very important to take a one sentence. One sentence means full stop to full stop. Now I am having this line with me. Why I am putting this line here? Because I just want to show you that how paraphrasing is important in a IELTS reading. Look at this, candidates. Now I have this line from my passage. In the first half of the 1800s, now look at the paraphrasing. 1800 and 1850, a very good time phrase for your task 1. टास्क 1 के ग्राफ में इस तरह से आता है। इंपॉर्टेंट है, आपके पास पेन पेंसिल है तो आप अपने नोट जरूर बनाएं।
वहां पर बिटवीन एंड लगता है, फ्रॉम के साथ टू लगता है। ये दो prepositions आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज टू prepositions फॉर योर टास्क 1। सो प्लीज प्लीज प्रिपेयर नोट्स। बिटवीन एंड टाइम फ्रेज दिया हुआ था, हम इसको फ्रॉम टू भी कर सकते हैं। बट जब हम पैसेज में गए, पैसेज में लिखा है फर्स्ट हाफ ऑफ 1800। सो पैराफ्रेजिंग, अब ये पैराफ्रेजिंग रीडिंग में हम इसको कर रहे हैं तो हम स्कैनिंग कर रहे हैं, और जब हम राइटिंग में जाते हैं तो हमें वहां पर इसकी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज वी विल गेट मोर मार्क्स फॉर इट, बिकॉज इससे रेपिटेशन नहीं होती है। अब यहाँ लिखा हुआ है लंदन, लंदन तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है लंदन। दे आर सेइंग इंक्रीज रैपिडली, वर्ब एडवर्ब इज ऑलरेडी गिवन, इंक्रीज्ड रैपिडली। नाउ यहां पर इंक्रीज्ड रैपिडली के लिए लिखा हुआ है ग्रीव एट एस्टोनिशिंग रेट। नाउ यू टेल मी कैंडिडेट्स, व्हाट विल बी द आंसर? व्हाट इज गोइंग टू बी इंक्रीज? व्हाट? यस, द सब्जेक्ट, द पॉपुलेशन। So candidates, this is going to be my answer. My answer will be population. They are saying London's population, and here my question is, the population of London increased rapidly between 1800 and 1850. 1800 and 1850, a time phrase replaced with first half of the 18s. So candidates, it's important to learn paraphrasing. अब देखो, अभी हम रीडिंग कर रहे थे, बट हमने क्या क्या चीजें लर्न करी? हमने लर्न करा prepositions between and, हमने लर्न करा preposition from to, हमने यहां पर उसी की पैराफ्रेजिंग चेक करी, उसको उसने लिख दिया फर्स्ट हाफ ऑफ द 1800s। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माय टास्क 1। देन अगेन इन अ टास्क 1 इट इज इंपॉर्टेंट वर्ब एडवर्ब रिलेशनशिप, इंक्रीज्ड रैपिडली। यहां पर लिखा है ग्रीव एट एन एस्टोनिशिंग रेट। क्लियर? सो कैंडिडेट्स, वहां पे वर्ब के साथ एडवर्ब लगाया था, यहाँ पे नाउन लगाया, और नाउन के साथ उन्होंने एडजेक्टिव लगाया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टास्क 1। हम अपनी बहुत सारे टास्क 1 के वीडियोस में एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे वर्ब एडवर्ब और नाउन के साथ आप एडजेक्टिव लगाकर पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं, और ये पैराफ्रेजिंग टास्क 1 के बैंड स्कोर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। होप क्वेश्चन नंबर 1 सबको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 वन वर्ड आंसर लिखना था, आंसर है पॉपुलेशन। वोकैबुलरी हमने सीखा है, होप आप सबने नोट्स बना लिए होंगे। हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन के लिए हमारा टाइटल है द प्रपोज सॉल्यूशन। चार्ल्स पियर्सन, अ सॉलिसिटर, सजेस्टेड बिल्डिंग एन अंडरग्राउंड रेलवे। नाउ दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन गिवन बाय चार्ल्स पियर्सन। Candidates, why I am reading this line? I know my answer is not here. Correct? My question is not here. So in a final test, I suggest you not to read, because you have to concentrate directly on your question number, because in a final test, you will be having only 18 minutes. From my side, it's 18 minutes. However, you will get 20 minutes for the number 1 passage or number 2, 20. But I suggest ideally spend 18 minutes. Correct? Now, why I am reading here? Because अभी हम यहाँ पर आज एक आपको ट्यूटोरियल दे रहे हैं, समझा रहे हैं, तो हमने यहाँ पर ये लाइन भी रीड करा है। इस लाइन को मैंने इसलिए रीड करा है बिकॉज दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो यू द पंक्चुएशन। आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करें दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ पंक्चुएशन, जो कॉमा लगाया हुआ है। उन्होंने लिखा है चार्ल्स पियर्सन, पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, प्रॉपर नाउन है, कॉमा लगाया, उसके बाद उसका टाइटल एक्सप्लेन करा है, अ सॉलिसिटर, देन कॉमा क्लोज, then they are mentioning the verb suggested building an underground railway. So hope you understand that how we can use the punctuation to describe an important information within the same sentence. तो punctuation candidates grammar का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपके टास्क 2 में इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं यहां पे समझाना चाह रही थी कि उन्होंने कैसे डबल कॉमा यूज करा है। आप नोट्स बनाएं, जरूर याद रखें, आप इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स अपने टास्क 1 में और टास्क 2 में जरूर यूज करें। कैंडिडेट्स, रीडिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है। अगर आप रीडिंग पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं, रीडिंग के स्किल्स को समझते हैं, सीखते हैं, तो डेफिनेटली आई कैन एश्योर यू दैट योर बैंड स्कोर इन स्पीकिंग, इन राइटिंग इज गोइंग टू बी इंक्रीज अ लॉट, बिकॉज ऑल द मॉड्यूल्स आर interrelated. Ultimately, the goal is to test your English proficiency, and once you are having good communication means the English proficiency, you can get a good score in IELTS. So important क्या है कि हम रीडिंग की चाहे कर रहे हैं, बट इतने अच्छी तरह से आप पढ़ के करें कि आपकी ऑटोमेटिकली इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, फिर चाहे वो राइटिंग मॉड्यूल हो चाहे स्पीकिंग मॉड्यूल हो।
तो बस इसलिए हमने ये लाइन पढ़ा था। अदरवाइज आप फाइनल पेपर में मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप हर लाइन को पढ़ें, बिकॉज आपको सिर्फ वही लाइन पे कॉन्सेंट्रेट करना है जहां पे आपका क्वेश्चन अवेलेबल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Second question is, building the railway would make it possible to move people to the better housing in the dash. Correct. Now, as I told you earlier that you have to focus on the subject verb object. Look at this. In this sentence, there is a requirement of, mention in a comment box, there is a requirement of the object. Correct. Now, move people to better housing in the dash. Now, look at the article the. The article will definitely help you to find out the correct answer. The article will help you. Now, again, we will go back to the passage because 90% answers are in a serial order. This was my first answer. Hope you remember. Now we are going to the finding out the next when the proposed solution was given. Correct, dear? I request you all to please don't read everything. Just try to find out the answers with the help of the paraphrasing. If you remember, we have read the word Charles Pearson. Hope you remember, candidates. अभी हमने एक sentence पढ़ा था, Charles Pearson, who worked as a solicitor. See, the paraphrasing will help you a lot. यहाँ पर देखो क्या लिखा है, Charles Pearson, who worked as a solicitor. वहां लिखा था Charles Pearson, a solicitor. This will help you to understand the paraphrasing skills. प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़ें और ट्राई करें कि हम कैसे बना सकते हैं, अपने सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग सम डिफरेंट वर्ड्स। नाउ हिज आइडिया, हिज का मतलब यहाँ पे रेफरेंसिंग है, चार्ल्स पियर्सन को ही हिज लिखा है, यहाँ पर रेफरेंसिंग करी है प्रोनाउन के साथ। His idea was to relocate the poor workers who lived in the inner city slums to the newly constructed suburbs. Now I am taking this sentence. Hope you remember. While discussing the question number 1, I discussed with you that always try to take a complete sentence. It will help you a lot to understand the complete statement. Correct now? So look at this complete sentence now. I suggest you to please try to find out the correct answer. That what will be the answer for the question number 2. They are saying building the railway, move people to the better housing in the dash. Look and tell me what is the possible answer. Move people. They are saying move people. What is the verb given for here? Move people. They are saying relocate the workers. Move people. They are saying move. Move means relocate. To the better housing. What is a word given for better housing? Please check the paraphrasing skills. They are saying to the newly constructed. Now, what is newly constructed? Means a better housing. Look at the positive tone. Better housing. They are saying newly constructed. Where to move them? Better housing in the suburbs. So what will be the correct answer? The correct answer is the suburbs. Hope candidates, is this clear to you? But I request you, if you know the answer, please try to understand that how. Try to match each word. Move people, relocate workers, better housing to newly constructed. Where? In the suburbs. So suburbs is the answer for my question number 2. Hope you are getting your ideas clear with the help of the keywords. Keywords will help you. Again, a number of dash agreed with Pearson's idea. A number of dash. Now see, they are talking about a number of. So candidates, please tell me in the comment box, a number of means singular or plural? Subject verb agreement, a number of. So it could be a singular or a plural. A number of. Singular or plural? Yes, of course, it's plural. Correct now? So it become easy for us to find out the correct answers from this. Hope you remember. My second answer was here. Relocate the poor workers. Now we are going to the next line. In the next line, again, always suggesting you to take a complete line. Here the line is this. I am putting my line here. Again, try to check candidates. It's very important to learn the paraphrasing. It's very important to find out the correct answers. To the practice, they are saying agreed with Pearson's idea. Now see,
They are saying agreed. A positive tone verb, agreed. Here they are replacing this verb with the word gained support. Here's an idea. Now tell me, what is the plural in this? What is the plural in this? A number of dash. What I should go with the subject, a number of? Yes, correct candidates. The answer is the businessman. So in this way, you have to find out the correct answer, but candidates, please do the paraphrasing, that a verb replace verb, subject replace subject, object replace object. Please be careful about this thing. Please be careful. Never forget the formula. Strategy will remain same. कैंडिडेट स्ट्रैटेजी आपको यही फॉलो करना है. नंबर ऑफ लिखा था, मुझे सब्जेक्ट चाहिए था, मुझे पहले ही मालूम था कि आंसर प्लूरल है. हम पैसेज में गए, हमने चेक करा, हमें लाइन मिल गया कि ये लाइन है. वहां लिखा है अग्रीड, पॉजिटिव टोन लग रहा था. यहां पर अग्रीड नहीं है, यहां पर सेम वर्ब लिखी है गेन्ड सपोर्ट, पॉजिटिव टोन है. नंबर ऑफ लिखा था, मतलब मुझे प्लूरल चाहिए था, तो हमारा यहां पे प्लूरल क्या आया? बिजनेसमैन. The company initially had problems getting the dash needed for the project. Now here, if you check, they are saying company initially had a problems. Correct? Getting the dash needed for the project. Again, I'm going back to the passage, checking for my answer. See, 90% answers are in a serial order. So you can go in a same way. Clear, candidates? Now here, if you check, you will get the answers from here. In the next line, it is mentioned. Very important to check. See, जब तक आप लोग खुद स्कैनिंग नहीं करेंगे, because I never suggest to read the whole passage. I never suggest. I always suggest to pay attention to the paraphrasing skills. Paraphrasing skills means always try to find out the main keyword. Then try to find out the keyword from your own line. The company initially had problems. The company initially had a problems. What type of tone is this? This is a negative tone. In the same way, I will write a company with organization had problems with had difficulty. Getting the dash needed for the support. Needed for the support. Here needed word is for verb. Here the raising word is for the verb. So candidate, it is very important to check that I am telling you over and over that it is a verb replacement with the verb. Subject with the subject. Negative tone है, उसने लिखा है company had problems. वहां लिखा है had difficulty. किस चीज में प्रॉब्लम आ रही थी? Getting the needed funds. यहां पे भी लिखा है raising the funding. उनको फंड्स नहीं मिल रहे थे, ये सबसे बड़ी ट्रबल थी, ये नेगेटिव पॉइंट, ये प्रॉब्लम थी उस प्रोजेक्ट को. यहां पे प्रोजेक्ट के लिए वर्ड यूज हो रहा है स्कीम. आपको इस तरह के सभी वर्ड्स की नोट्स बनाने पड़ेंगे. आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा दैट कंटैक्चुअली वर्ड का मीनिंग सेम आ रहा है. एवरी वर्ड इज नॉट द सिनोनिम कैंडिडेट्स. हर वर्ड एक दूसरे का सिनोनिम नहीं होता है. बहुत सारे वर्ड्स डिफरेंट रोल प्ले करते हैं एट अ डिफरेंट प्लेसेस. सो यू हैव टू बी कीप इन माइंड दैट कंटैक्चुअली द वर्ड हैज अ सेम मीनिंग. हैड प्रॉब्लम्स, यहां लिखा है हैड डिफिकल्टीज. Needed for the project, the money they need. Negative articles about the project appeared in the. Now see, the same answer is given here because of the critical articles printed by the press. So the project appeared in the negative articles. यहां पर लिखा है negative articles, यहां पर the word is critical articles. The project appeared in the. Where they appeared? They appeared in the press. They are saying printed in the press. Look, आपको एक चीज हमेशा माइंड में रखना है कि यहां पर वर्ब को वर्ब ही रिप्लेस करता है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट. ऑलवेज कीप दिस थिंग इन टू माइंड. इट विल हेल्प यू अ लॉट इन फाइंडिंग आउट द करेक्ट आंसर्स. ये सभी चीजें आपको अपनी प्रैक्टिस में याद रखनी है. जरूरी नहीं है C17 की रीडिंग में ये इंपॉर्टेंट है. ये स्ट्रैटेजीज आपको कैम्ब्रिज के सभी रीडिंग कंटेंट में यूजफुल रहेगी. क्वेश्चन नंबर 6 के लिए यहां पर हमारे को पहले कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं. उसके बाद 6th क्वेश्चन में आते हैं. विद द कंप्लीशन ऑफ द ब्रिक आर्क द टनल वाज कवर्ड विद. द टनल वाज कवर्ड विद. नाउ दिस इज माय मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, that the tunnel was covered with. Again, I am going back to the paragraph. My last answer was here. If you funding
My last answer was here printed by the press. Now I am having at the next place, that is about the construction. Now they are saying was covered with. Correct, dear? If you remember, my answer was this, cut and cover. Keywords are going to be match here and there. Now I am saying with this line, always try to take a complete sentence will help you to find out the correct answer. Candidates, मैं आंसर्स आप लोग के लिए यहीं पर ही कॉपी कर रही हूँ just to get a proper understanding कि आप बाद में समझ सके कि ये आंसर्स किस तरह से मैच हुए थे. यहाँ पर लिखा है with the completion of the break arc. यहाँ पे भी लिखा है break arc was added to create the tunnel. Tunnel was covered with, हमें यहां से चेक करना था टनल किससे कवर थी. यहां पे चेक करना था, यहां लिखा हुआ है डीप लेयर ऑफ सॉइल वाज लेड ऑन द टॉप ऑफ द टनल. ऑन द टॉप ऑफ द टनल. इफ यू चेक यहां पे एक्टिव सेंटेंस कैसे पैसिव सेंटेंस में चेंज हो रहा है. अगेन ग्रामर, टनल वाज कवर्ड विद, हमारे को वन वर्ड आंसर देना है, ओनली द वन वर्ड, तो हम लिखेंगे कवर्ड विद सॉइल बिकॉज वहां मेंशन है वन वर्ड ओनली. तो टनल वाज कवर्ड विद सॉइल. दे आर सेइंग द सॉइल वाज लेड ऑन द टॉप ऑफ द टनल. सो इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं. अगेन कैंडिडेट्स आई एम रिपीटिंग, आप फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे. सो कीप इन माइंड ग्रामर. ग्रामर मीन्स सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. Always try to understand that what is the requirement of your fill in the blank. What is the requirement of the sentence? Is it a sentence, subject or the object? Next, most important thing, always pay attention to the paraphrasing. While doing the paraphrasing, keep in mind negative tone, replace negative tone only. Verb will replace verb, subject will replace subject. जब आप इस तरह की चीजें अपने माइंड में रखेंगे, आपका वोकैबुलरी ऑटोमेटिकली अच्छा होगा और आपका बैंड स्कोर भी अच्छा आएगा. टाइम फ्रेज था यहां पर, आज आपने देखा उसने कैसे चेंज करा. बिटवीन एंड था, वहां फ्रॉम टू लिखा, वहां पे हाफ्स में लिखा, क्लियर मेंशन था. यहां पर एक्टिव सेंटेंस कैसे पैसिव सेंटेंस में चेंज करा. वहां पर लिखा था प्रिंटेड बाय द प्रेस, वहां पर लिखा था अपीयर्ड इन द प्रेस. वहां प्रोजेक्ट था, वहां पर उसने लिखा स्कीम. तो इस तरह के बहुत सारे चेंजेस आपको मिलेंगे, आपका वोकैबुलरी अच्छा होगा. बट नेवर फॉरगेट प्रैक्टिस, practice, practice. You have to do lots of practice to get the perfect score. Now I have a question number 7 to 13 for the same passage. Candidates, while doing the true, false and not given, always keep in mind subject तो चाहिए हमें, verb चाहिए, object चाहिए true false में. उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें हमेशा याद रखनी है कि पॉजिटिव टोन है, नेगेटिव टोन है. सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है. अगर मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर कंपैरेटिव सेंटेंस है तो मुझे पैसेज में भी कंपैरेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ही चाहिए. अगर कंपैरेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर पैसेज में अवेलेबल नहीं है, देन माय आंसर विल गोइंग टू बी नॉट गिवन. वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर टाइप. इफ द सेंटेंस स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लेक्स इन अ पैसेज, यू हैव टू फाइंड आउट कॉम्प्लेक्स. वहां पर भी आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही मिलेगा. अगर पैसेज में क्वेश्चन कंपैरेटिव है, आपको पैसेज में भी कंपैरेटिव डिग्री ही सर्च करना होगा. अगर मुझे कंपैरेटिव डिग्री मिलता है, ओनली देन आई कैन से ईदर ट्रू और फॉल्स. अगर मुझे कंपैरेटिव डिग्री नहीं मिलता है, वहां पे कोई भी कंपैरिजन नहीं है, सो माय आंसर विल बी नॉट गिवन. तो जो भी क्वेश्चन का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, आपको वैसा टाइप ही पैसेज में जाके सर्च करना है. क्लियर. अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स करके देखते हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजीज तभी समझ आती हैं जब हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो. अब यहां लिखा है अदर कंट्रीज हैड बिल्ट अंडरग्राउंड रेलवे बिफोर द मेट्रोपॉलिटन लाइन ओपनड. नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड बिकॉज दिस इज वर्क एज अ टाइम फ्रेज फॉर मी. दे आर सेइंग बिफोर द मेट्रोपॉलिटन लाइन ओपनड. So this is like a condition. They are giving you a time phrase before that time. Maybe in a passage, I will find something that after this. Correct? Na? Maybe I will not get anything related to the time. So you have to be very careful. That is this after or before? Other countries had built underground railways. They are talking about underground railways. Of what? Of the other countries. Before the metropolitan line opened. So they are talking about metropolitan also. Now again, we will go to the passage.
90% answers are in a serial order. My last answer was here, if you remember. Yes or no? Now I am going to take this line, the metropolitan line. Correct. Again, you have to do the paraphrasing. पैराफ्रेजिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी राइटिंग और स्पीकिंग में हेल्प करेंगे, उसको और ज्यादा इंप्रूव करने में। ये रहा मेरा आंसर। अब मेरी आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है, प्लीज कीवर्ड्स को कीवर्ड्स के साथ मैच करें। यहां पर लिखा है बिफोर द मेट्रोपॉलिटन लाइन ओपेंड, तो मुझे बताएं मेट्रोपॉलिटन कब ओपन हुआ था। यहां लिखा हुआ है मेट्रोपॉलिटन विच ओपन 10 जनवरी 1863। Are you getting this thing? Metropolitan line which opened on 10 January 1863. Hope you remember. हमने ये पंचुएशन, डबल कॉमा की पंचुएशन अभी एक और एग्जाम्पल में भी पहले देखा है, जहां पर पियर्सन का नेम था, कॉमा लगा रखा था, फिर बता रखा था अ सॉलिसिटर, कॉमा क्लोज कर रखा था। सेम डबल कॉमा यहां पर भी अवेलेबल है। इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपकी राइटिंग में बहुत हेल्पफुल होते हैं। क्लियर? अब देखो क्या लिखा है। Other countries had built underground railway before the metropolitan line opened. यहां लिखा है metropolitan line which opened 10 January 1863 was the world's first underground railway. ये तो फर्स्ट था, तो बताइए वो कह रहे हैं बाकी कंट्रीज ने तो पहले ही खोल दिया था। अदर कंट्रीज हैड बिल्ट अंडरग्राउंड रेलवे बिफोर टाइम फ्रेज देखिए, और यहां पे टाइम फ्रेज क्या है, द फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे। अंडरग्राउंड रेलवे की बात तो हो रही है, यहां पर भी हो रही है, बट वो कह रहे हैं दिस इज द फर्स्ट, और यहां क्या लिखा है बिफोर द मेट्रोपॉलिटन। सो यस, गिवन है, मैं नॉट गिवन नहीं कर सकती हूं बिकॉज कंपैरिजन गिवन है, बट ट्रू नहीं है बिकॉज सब कुछ सेम नहीं है। तो नॉट गिवन नहीं है बिकॉज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मेंशन तो है, तो नॉट गिवन नहीं हो सकता। ट्रू भी नहीं हो सकता बिकॉज वहां लिखा है बिफोर और वहां लिखा है दिस इज द फर्स्ट अंडरग्राउंड। सो आई लेफ्ट विद द वन ऑप्शन दैट इज कॉल्ड एज अ फॉल्स। So question number 7 का आंसर false है candidates. I request to understand that why this is false. Not given नहीं है because मेरा subject, verb, object यहाँ पे मैच हो रहा है। यहाँ पर लिखा है underground railway, metropolitan, all words are given, but वहां लिखा है कि was the first underground railway, उसने लिखा है before this time period, जबकि यहाँ पे mention है 10 January 1863. Now come to the next question number 8. If you check the question number 8, 90% answers are in a serial order. I have taken the next line from this passage only. More people than predicted traveled on the metropolitan line on the first day. Again, a time phrase is given. What they are talking about? They are talking about the first day. Passage में भी लिखा है on the first day. Time is same. Now, they are saying more people than predicted. This is the thing that I require. More people than predicted. They are saying almost 40,000 passengers. More people than predicted, almost 40,000 passengers. The first day, यहां पर भी mention है on the first day. Traveled on the metropolitan line. They are talking about on its first day. Candidates, आप सबको शायद याद हो, यहां पर लिखा है the metropolitan line और यहां पे metropolitan के लिए लिखा है its. If you remember, हमने लास्ट लाइन में ही करा था। आई विल शो यू इन द पैसेज वंस अगेन। आप पैसेज में एक बार दोबारा से देखेंगे कैंडिडेट्स, ये देखिए द मेट्रोपॉलिटन, ये मेट्रोपॉलिटन की बात हो रही है और यहीं पे लिखा है ऑन इट्स। तो ये इट्स क्या है, ये इसकी रेफरेंसिंग है। आपको भी इस तरह की रेफरेंसिंग अपने टास्क 1 में, टास्क 2 में करना चाहिए। अब बताइए कैंडिडेट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पर वो बोल रहे हैं मोर देन प्रेडिक्टेड, यहां पे लिखा है ऑलमोस्ट 40,000। अब मुझे बताइए प्रिडिक्शन कहां पे अवेलेबल है, मोर पीपल देन प्रेडिक्टेड, यहां पे लिखा है ऑलमोस्ट 40,000 पैसेंजर्स। कहीं पे ये कंपैरेटिव डिग्री अवेलेबल है मोर पीपल देन प्रेडिक्टेड, ये मेंशन है फर्स्ट डे, मेंशन है मेट्रोपॉलिटन, बट ये कहां मेंशन है मोर पीपल देन प्रेडिक्टेड, जितना उन्होंने प्रिडिक्ट करा था उससे भी ज्यादा। ये कहां मेंशन है, उन्होंने कितना प्रिडिक्ट करा था, नंबर बताएं कितने, उससे भी ज्यादा ने ट्रेवल करा। यहां तो उन्होंने बता दिया ऑलमोस्ट 40,000 पैसेंजर्स। अब ये फॉल्स है, ट्रू है या नॉट गिवन है, आप चेक करेंगे। आपको मेट्रोपॉलिटन मिल रहा है, फर्स्ट डे मिल रहा है, बट जो उसने लिखा है मोर पीपल देन प्रेडिक्टेड, ये वर्ड अवेलेबल नहीं है। ये पूरा का पूरा एलिमेंट मिस है। और जब भी इंफॉर्मेशन मिस होती है कैंडिडेट्स, जब भी इंफॉर्मेशन मिस होती है, आंसर इज नॉट गिवन।
आपको ये चीज बहुत ध्यान से याद रखनी है कैंडिडेट्स। इंफॉर्मेशन मिस है, इसीलिए आंसर नॉट गिवन है। हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, मोर पीपल देन प्रेडिक्टेड। इफ कंडीशन सुनिए कैंडिडेट्स, अगर यहां पर अवेलेबल होता लेस पीपल देन प्रेडिक्टेड, लेस पीपल देन प्रेडिक्टेड, क्वेश्चन में लिखा था मोर पीपल देन प्रेडिक्टेड, इट विल बी फॉल्स, बिकॉज प्रेडिक्शन तो अवेलेबल थी, कंपैरिजन गिवन था, हम लोग करते इसका आंसर फॉल्स। लेकिन यहां पर ऐसा कोई भी कंपैरिजन अवेलेबल नहीं है कि वो कितने प्रिडिक्ट करे थे उन्होंने और उससे कितने ज्यादा ने ट्रेवल करा या उससे कितने कम ने ट्रेवल करा। तो उस प्रिडिक्शन के बारे में कहीं नहीं बता रखा। इंफॉर्मेशन मिस है, जब भी इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी, इनकम्प्लीट होगी, हमें आंसर नॉट गिवन देना होगा। Thank you, candidates. Now move to the next question and please try to understand that use of ventilation shafts. Now this is my question. Failed to prevent pollution in the tunnels. Failed to prevent. What they failed to prevent? They were not able to prevent the pollution in the tunnels. Now look, subject, verb, object. This will help you to understand. Ventilation shafts failed to prevent. I'm going back to my questions. If you remember, my last answer was here, 40,000 passengers. Up into the next line only, I'm getting my this answer. Yes, candidates, please check here. It is mentioned. यहां पर जो मेरा अपना कीवर्ड था, आपको सिर्फ अपने कीवर्ड्स के ऊपर ध्यान देना है, आपको वेंटिलेशन के बारे में ढूंढना है। करेक्ट डियर? ये देखिए, आपको चेक करना है कि उन्होंने क्या बताया है, क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आपके कीवर्ड्स ही आपको हेल्प करेंगे करेक्ट आंसर बताने में। सिर्फ आपको सेंटेंस से सेंटेंस मैच करना है। अब मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज आप एक बार चेक जरूर करें। यहां लिखा है वेंटिलेशन, यूज ऑफ वेंटिलेशन शाफ्ट, यहां भी लिखा है वेंटिलेशन शाफ्ट। वर एडेड टू द टनल्स, यस वर एडेड टू द टनल। फेल्ड टू प्रिवेंट, यहां पे भी लिखा है रिमेन्ड अ प्रॉब्लम, रिमेन्ड अ प्रॉब्लम, वो अभी भी एक प्रॉब्लम थी। करेक्ट डियर? अब इस सिचुएशन में हमें क्लियरली पता है कि हमारा आंसर क्या है। पॉल्यूशन के लिए आप सबने होप चेक कर लिया होगा, पॉल्यूशन के लिए उन्होंने रेफरेंसिंग क्या दिया है। However, smoke and fumes remained a problem. Remained a problem. That is still a problem, means they are failed to prevent it. They are failed to stop it. That is still a problem. यहां भी लिखा है remained a problem. Ventilation shafts were added to the tunnels, but pollution is still a problem. Question number 10th. A different approach from the cut and cover technique. अब यहां पे दो टेक्निक्स की बात हो रही है। टेक्निक 1 क्या है? कट एंड कवर टेक्निक। A different approach means a different method was required in London central area. This is my object given here with that area, London central area. Cut and cover technique, they are saying a different approach. Different approach means they are talking about a different method also. They are saying that is used. If you remember, my last answer was here. See, in a 90% area, this will help you a lot to find out the answer in a serial order. Correct na? Once you have this, that which paragraph contains, वो serial order में नहीं होता है बेटा, which paragraph contains. Correct ना? Heading serial order में नहीं होती है क्योंकि वो तो paragraphs पूछ रहे हैं. But fill in the blanks, true, false, MCQs, इसमें possibility है. यहां पर ऐसा ही प्रोग्रेशन चलता है. Now, आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में दो कंपैरिजन थे. वो कह रहे थे एक था कट कवर मेथड और एक कह रहे थे एक नया डिफरेंट मेथड है. हमने भी यहीं से सेंटेंस लिया बिकॉज प्रोग्रेशन में चल रहा था हमारा भी पैसेज. हमने यहाँ पर सेंटेंस को कॉपी पेस्ट करा है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए. यहाँ लिखा है कट कवर टेक्निक, यहाँ पे लिखा है कट कवर मेथड. टास्क 1 के लिए अच्छे वर्ड्स हैं, टेक्निक, प्रोसेस, अप्रोच, मेथड, बहुत बार आते हैं हमें ऐसे. उसने लिखा डिफरेंट अप्रोच, एक डिफरेंट अप्रोच की जरूरत है. यहां पर लिखा है वाज नॉट एन ऑप्शन. द ओनली ऑल्टरनेटिव, द ओनली ऑल्टरनेटिव. Check candidates. The cut and cover construction was not an option. They are saying a different approach from this is required.
we are saying that yes, the only alternative is available. So again I will say that answer is going to be the true. आपको करना फिर से यही है कैंडिडेट्स, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, जब भी आपको ट्रू फॉल्स करने हैं आपको कीवर्ड से कीवर्ड मैच करना है, आपको सेंटेंस की रिक्वायरमेंट देखनी है, क्या वो पॉजिटिव टोन है, पॉजिटिव टोन है तो आपको भी पॉजिटिव चाहिए। अगर वो कंपैरेटिव है, किसी के साथ कंपैरिजन है, जैसे अभी आपने देखा मोर देन प्रेडिक्टेड, हमें ऐसा कंपैरिजन नहीं मिला। जब इंफॉर्मेशन मिस होगा आपको आंसर देना है नॉट गिवन। अब द विंडोज ऑन सिटी एंड साउथ लंडन, अब किसकी बात हो रही है? विंडोज की। द विंडोज ऑन सिटी एंड साउथ लंडन ट्रेन्स वर एट द आई लेवल। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द विंडोज? विंडोज वर एट आई लेवल। अब अगेन आई एम गोइंग बैक टू द पैराग्राफ, सर्चिंग, जहां पर वो मेंशन कर रहे हैं कि उनकी विंडोज जो है वो आई लेवल पर है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे को विंडो की एक्सप्लेनेशन कहां पर दी हुई है। जहां पर भी आपको विंडो की एक्सप्लेनेशन मिलेगी आप वहीं से अपना पूरा सेंटेंस लेंगे, फुल स्टॉप से लेके फुल स्टॉप तक आंसर को चेक करेंगे, मतलब कि वन लाइन, वन सेंटेंस, आपको वही अपना सेंटेंस लेना है। जैसे यहां लिखा हुआ है द कैरेज वर नैरो एंड हैड अ टाइनी विंडो जस्ट बिलो ऑफ द रूफ। तो मैंने ये पूरा सेंटेंस लिया। कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग के लिए प्लीज मेरी भी आपसे यही सजेशन है कि जब भी आप प्रैक्टिस करें अपने कीवर्ड्स को इस तरह से जरूर मैच करें, चेक करें कि कैसे होगा। ये देखिए विंडोज की बात यहां पर हो रही है, हमने इसलिए ये सेंटेंस लिया है। पैराफ्रेजिंग इंपॉर्टेंट है, पढ़ना नहीं है, सिर्फ अपने कीवर्ड सर्च करें और वहां पर पहुंचे जहां पर आपका पैसेज है। यहां पर लिखा है विंडोज, ये लिखा है विंडोज वर एट दी आई लेवल। वो कह रहे हैं जो हमारी विंडोज है वो आई लेवल पर है। यहां पे क्या लिखा है? विंडोज कहां पर है? पोजीशन गिवन है। यहां पर भी देखिए, यहां पर क्या पोजीशन है? जस्ट बिलो दी रूफ, just below the roof they are saying we're at the eye level. मेंशन है लोकेशन बट इंफॉर्मेशन मिसमैच हो रही है, इसलिए हम कहते हैं कि नॉट गिवन में और फॉल्स में। मैंने बहुत सारे लाइव सेशंस में सुना है जब मेरे को स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करते हैं या हमारे साथ क्लासेस में भी होते हैं कि मैम हमें ना नॉट गिवन में बड़ी कंफ्यूजन होती है। कैंडिडेट्स ओवर एंड ओवर आई एम रिपीटिंग, आप अपने माइंड में एक चीज बिल्कुल क्लियर करें, नॉट गिवन का मतलब होता है व्हेन द इंफॉर्मेशन इज मिसमैच। करेक्ट? जब भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, मिसिंग वो इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं हुआ, मिस है, आपको आंसर करना है नॉट गिवन। जब भी आंसर फॉल्स होगा, फॉल्स का मतलब है कॉन्ट्राडिक्शन। वहां लिखा है बिलो एवरेज, वहां लिखा है अबव एवरेज। बिलो एवरेज, अबव एवरेज, जब भी इंफॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट, अपोजिट, जब भी अपोजिट होगा, कॉन्ट्राडिक्ट होगा, मिसमैच होगा, हमारा आंसर फॉल्स की तरफ जाएगा। जब भी इंफॉर्मेशन मिस होगी, इंफॉर्मेशन ही मिसिंग है, वहां पे वो इंफॉर्मेशन है ही नहीं, वहां पे वो एलिमेंट ही नहीं है, वहां पे वो कंपैरेटिव डिग्री ही नहीं है, कहीं मेंशन ही नहीं है कंपैरिजन का, ऐसी सिचुएशन में हमारा आंसर नॉट गिवन होता है। ट्रू बहुत सिंपल है, ट्रू का मतलब यही है कि वो पैराफ्रेज हो रहा होगा, सेम टोन दे रहा होगा। अब यहां लिखा है, होप आप सबको पता चल गया, यहां लिखा था एट द आई लेवल, यहां पे था जस्ट बिलो द रूफ। मेंशन है कि उसके अंदर विंडोज थी बट कहां पर थी? बिलो द रूफ, बिकॉज यहां लिखा है वुड नॉट वांट टू लुक एट द टनल वॉल्स, दे डोंट वांट द पैसेंजर्स वुड लुक एट द टनल वॉल्स। The city and South London Railways was a financial success. Now look at this. They are talking about a financial success, means it is a positive tone sentence. They are saying na was a financial success, means it is a positive tone sentence. अब मुझे पैसेज में चेक करना है कि क्या ये पॉजिटिव टोन है। अगर ये पॉजिटिव टोन है तो मेरा आंसर ट्रू हो जाएगा। अगर ये आंसर वहां पर पॉजिटिव टोन नहीं है तो मेरा आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। और अगर वहां पर लिखा ही नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो मेरा आंसर क्या होगा? वेरी मच करेक्ट, मेरा आंसर होगा नॉट गिवन। कैंडिडेट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की बात है। अगर यहां पर लिखा है प्रॉफिट, यहां पर लिखा है फाइनेंशियल सक्सेस, मतलब ये पॉजिटिव टोन है। अगर अब मेरे को यहां पर मिलता है नेगेटिव टोन, ये देखिए नेगेटिव टोन, ये लिखा है अ फाइनेंशियल सक्सेस, यहां पे लिखा है डिड नॉट मेक अ प्रॉफिट, ये था पॉजिटिव और ये है नेगेटिव टोन। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, इसलिए मेरा आंसर फॉल्स है।
अगर सेम वहां पे लिखा है फाइनेंशियल सक्सेस पॉजिटिव टोन, मुझे पैराग्राफ में भी पॉजिटिव टोन मिल जाता, मुझे मिल जाता बिग प्रॉफिट, मुझे मिल जाता अ ग्रेट सक्सेस, मेरा आंसर होता ट्रू, बिकॉज पॉजिटिव टोन के साथ पॉजिटिव टोन मैच हो जाता। बट यहां पर कैंडिडेट्स वो पॉजिटिव टोन है, ये नेगेटिव टोन है, आंसर कॉन्ट्राडिक्ट हुआ, आंसर होगा फॉल्स। लेकिन अगर यहां पर अवेलेबिलिटी नहीं होती, बताया ही नहीं होता, नॉट मींस नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ऐसी सिचुएशन में हम करते नॉट गिवन, बिकॉज हम कहते हैं हमारी इंफॉर्मेशन मिसिंग है। जब भी इंफॉर्मेशन मिस होगी, करेक्ट, अनअवेलेबल होगी, हमारा आंसर होगा नॉट गिवन। अब यहां पर जो हमारा आंसर है वो जाएगा फॉल्स। ये आंसर डियर फॉल्स है। रीजन सिंपल है, ये पॉजिटिव टोन है, यहां पर लिखा है नेगेटिव टोन, बट मेंशन है, बिल्कुल अपोजिट मेंशन है। अपोजिट का मतलब भी फॉल्स है, जबकि मिसिंग इंफॉर्मेशन जब मिस होएगी तभी हम कहेंगे नॉट गिवन है। ट्रेन्स ऑन द टम्पनी ट्यूब नियरली ऑलवेज रैन ऑन टाइम, always ran on time. Now this is my most important thing, always ran on time. अब सेम आप यहां पे भी चेक कर सकते हो, उसने लिखा है always ran on time, वहां पर लिखा होता neither ran on time, तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, फिर से मेरा क्या बनता, फॉल्स बन जाता। क्लियर ना? और उसने लिखा होता ऑलवेज रैन ऑन टाइम, यहां पे भी लिखा होता है अवेलेबल ऑन टाइम, तो क्या हो जाता, ट्रू हो जाता। अब वहां पे कुछ मेंशन ही नहीं है, देखिए उसके बारे में चेक करते हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहां पे लिखा हुआ है टपनी ट्यूब के बारे में, ये देखिए, ये 2 लाइंस हैं टपनी ट्यूब के बारे में, मैंने 2 लाइंस लिया है। क्यों लिया है? बिकॉज नेक्स्ट लाइन उसकी रेफरेंसिंग थी, इट लगा रखा था। होप आप सबने आज याद करा है कि इट कैसे लगाते हैं। ये रहा टपनी ट्यूब का सेंटेंस, ये रहा टपनी ट्यूब, मुझे यहीं से चाहिए था कि मेरा आंसर करेक्ट चल रहा है। यहां लिखा था इट वॉज वेरी पॉपुलर, तो इट से मुझे लगा कि ये टपनी ट्यूब की बात हो रही है। ऑलवेज रैन ऑन टाइम, मुझे यहां पे चेक करना था रैन ऑन टाइम, लेट, या तो लेट मिल जाता या ऑन टाइम मिल जाता। अगर लेट मिल जाता तो फॉल्स कर देते, ऑलवेज रैन ऑन टाइम मिल जाता, टाइम पर चलती है, तो हम क्या कर देते, ट्रू कर देते। बट यहां पर सेंटेंस में टाइम के बारे में मेंशन ही नहीं है कि वो लेट जाता है या वो जल्दी जाता है। जब इंफॉर्मेशन ऐसी अवेलेबल ही नहीं है, ऐसी सिचुएशन में हम लोग आंसर करते हैं नॉट गिवन। तो कैंडिडेट्स, ये था हमारा कैम्ब्रिज 17 का एक रीडिंग पैसेज। होप यू ऑल गेट द अंडरस्टैंडिंग हाउ टू फाइंड द करेक्ट आंसर्स फॉर द C17, द लेटेस्ट रीडिंग कंटेंट। कैंडिडेट्स, एक चीज हमेशा माइंड में रखें कि जब भी हम कैम्ब्रिज का रीडिंग करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में ग्रामर, ट्रू फॉल्स करते हुए पैराफ्रेजिंग, ये हमारी बहुत हेल्प करता है। इस तरह के और ट्यूटोरियल्स के लिए स्टे कनेक्टेड to our YouTube channel, Western Overseas. Thank you, candidates. Thank you for joining and watching this video.